Hello guys, welcome back to the session. Now today after some time we are again in a hurry, in a rush to complete our syllabus. Again, it is something to do with the JPSC itself, the whole authority, the whole management. I don't know what they are planning, how they have made the schedule, what they are thinking. It's very unclear for us, even for the mentors and even for the students. Now the problem is, uh, actually, I was after the PT. I had completed one unit, that was History of English Language. So as you can see this, let me show it to you. So this is the syllabus of JPSC. Okay, so this first unit, History of English Language, we had already did it, and I was pretty much in a very composed mind that okay, when the results of PT will be out, we'll be getting 2 months, and then easily we'll be able to do rest of the syllabus. But now day before yesterday we got the news that the tentative dates for the mains will be near 18 to 20th July, and that you know came something as a shock to every one of us, including, I mean, in the mentors and the students, aspirants. Now again, it's Jharkhand, it is JPSC. It is highly possible that dates can change, but if something has been mentioned, then we cannot ignore it. So if they have said that 20th is might be a possible date for mains, so our intention should be to complete our syllabus before 20th. Okay, now, so today again I'm starting. I have completed part 1. Okay, all the lectures and PDFs are uploaded in my application. Now today I am going to start this section, that is History of English Literature. This is the basically Achilles heel in the syllabus. This is the biggest section in the whole syllabus, most challenging one as well, you can say, because there might be some things that are unpredictable. But again, I have made my notes, PDFs in a very holistic way. I have all, like, compared to the last like students who had who were enrolled with me, like in my last course. I completely changed the notes. I have completely changed the PDFs and all. I was planning to, I was take comprehensive classes, but again I will have to cut corners somewhere. Okay, but again we will be doing it properly. So yes, this is the section that we are going to start today, that is History of English Literature from 14th century to 21st century, from age of Chaucer to modern age, including there will be some other aspects as well, like little bit of American writers, little bit of Indian writers will be mentioned. Okay, we'll also be reading those writers. Okay, but the major section, the major chunk of the section is the British section, and the British literature, that and also the Old English literature has not been included in the syllabus. So from 14th century to the modern. So this is our first class for History of English Literature. Chalo dekhte hain guys. Okay, I think everything is fine, mic, audio, everything is right. So today we are going to start. Today we are going to start the Age of Chaucer. Okay, very the initial chapter from which the JPSC has defined. Okay, in any examination, generally this unit, that is History of English Literature, starts from Old English Literature. But okay, fortunately that part has been removed. Chalo, so Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, the father of English language, the father of English literature, not language, father of English literature, the father of English poetry. Okay, the whole age of Chaucer starts from 1343 to 1400. In many books, it will be given 1340 to 1400. Okay, but to be very precise, it starts with the birth of Chaucer and ends with death of Chaucer. So 1343 to 1400. Now, Chaucer is generally known as father of English poetry and father of English literature. Chaucer gave English literature its very foundation, right? He was the first major poet to write in Middle English and proved it could be a language of beauty, power, and lasting greatness. Now,
Does that mean that Chaucer was someone who actually started writing in English? Was the first? No, not at all. So why he is considered as the father of English poetry? Why he is considered as the father of English literature? Because you know, we all know. You must have studied in history of English language that after the Norman conquest in 1066, there was a drastic shift in the, or you can say there was a language barrier created in the society. The rich and elite classes were speaking French, the lower sections of the society were speaking English, and the priestly class, such as clerks and priests, were speaking Latin. So Chaucer showed a way. Chaucer actually helped to glorify this language. Chaucer actually helped English to get its, position back in the English society. He actually showed that yes, English can be used to write great works, great literature form. Because this was the time in which the major literary works were being written in French. But again, Chaucer came with a different perspective. He showed that no, English is a great language. Major works, major poetry can also be written in English language. Okay, so Chaucer was born in 1533 in London. His occupation, he was multi-talented person. He was a poet, he was a writer, he was a diplomat, he was a courtier. Okay, he has served as a courtier for three kings. I'm not going to take the names of the kings because that will be little irrelevant. Served the English crown in the important diplomatic missions in Italy, France, and Flanders. So he served as a diplomat. He was also kidnapped. The king had to give a ransom to get him free. He died on 25th October 1400. You don't need to remember the date, just year will be enough. And he is buried at Westminster Abbey there. Okay. Now, before Chaucer, what was the case? When it comes to the literature, all serious writing in England was done in Latin or French. Like I said, every serious writing was done in Latin or French. Now, Latin was the language of church and scholars. Right? Latin was the language of church and scholars. Now, French, the language of French, or you can say the Norman, the French was the language of Norman or the ruling classes. Every, or you can say the French was the language of the scholarly people, the upper class of the society. The aristocracy were speaking French. Ordinary English was considered unfit for great literature. Okay, so this was the reason why Chaucer is considered. He brought English back to its glory. Ordinary English was considered unfit for great literature. So he raised English to a language of literature, dignity, and power. So he gave English back its dignity, back its glory, and back its power. Now Chaucer changed everything. Chaucer wrote in Middle English, the language of people. Again, English was the language of people. He proved English could tell complex, rich and beautiful stories just as well as Latin और French. उन्होंने ये साबित किया कि इंग्लिश को भी यूज करके हम कॉम्प्लेक्स स्टोरीज, अच्छी स्टोरीज, ग्रेट स्टोरीज और ग्रेट पोइट्रीज को लिखी जा सकती है. ओके, नाउ चॉसर्स लास्टिंग कंट्रीब्यूशन. चॉसर ने ऐसा क्या किया जो अभी तक वो एवर लास्टिंग है? सो पहला कि पायनियर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, first major poet to write in Middle English. He showed that the language of ordinary people could be used for great literature. Second point, ये points अगर आप लिखोगे तो marks मिलेगी. Master of poetic forms. He introduced important poetic forms into English. Okay, that is the heroic couplet. थोड़ा मैं zoom करता हूँ, zoom होगा? Just a second, guys. चलो. So he introduced important poetic forms into English. The heroic couplet. Heroic couplet क्या होता है? अब इसको थोड़ा poetic terms में समझ लेंगे. अभी थोड़ा बस इसको बस याद कर लो, मगअप कर लो. चौसर का कंट्रीब्यूशन पोएट्री में क्या था? हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट का मतलब 2 लाइंस होते हैं, 2 राइमिंग लाइंस विद ऑफ इक्वल लेंथ. फिर उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर का भी काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया था. अरिथमेटिक पैटर्न ऑफ 10 सिलेबल पर लाइन. दिस बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश वर्स. और ये आयम्बिक पेंटामीटर को शेक्सपियर ने भी एक्चुअली यूज किया था. ठीक है. Next, author of a masterpiece. Masterpiece, the Canterbury Tales. Okay, this is a poetry that could have been a prose. मैंने क्या बोला? Canterbury Tales is a poetry. Poetry के forms के थ्रू वो एक कहानी बताता है. अब आप बोलोगे कहानी बताता तो ये तो नॉवल हो सकता नहीं.
इसको पोएटिक फॉर्म में लिखा गया, इसीलिए इसे नॉवल नहीं कहा जा सकता। अच्छा, प्रोज किसे कहते हैं? प्रोज इज लाइक नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, लेटर्स, इसे हम लोग प्रोज कहते हैं। सो कैंटरबरी टेल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर, फुल ऑफ विजडम, ह्यूमर, ह्यूमैनिटी एंड वेराइटी। ये like this work is considered as the masterpiece of Chaucer. Okay, and there is quite a surprise. You'll be quite surprised to know, that English was not his first language in his career. He started with different languages like French, Italian. English was his last language in his career. His writing career started with French, Italian, then English. Okay. So, but again, this Canterbury Tales is considered as his masterpiece. Now, what are the impacts that he laid for the future generations, for the future great writers, and inspiration for two generations? Great poets who came after him acknowledge Chaucer as their predecessor and inspiration. First is Edmund Spenser. ठीक है, एडमंड स्पेंसर इज, ही इज कॉल्ड एज द पोएट ऑफ द पोएट, कवियों के कवि कहा जाता है इन्हें। ठीक है, our he said our learned Chaucer was the first that founded out our fair language. Next, William Shakespeare. The gentle Chaucer lay little foundation that English might be read. John Milton, पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा था। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। चॉसर इन हिज whose invention all delight, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइड। ओके, आपको ये कोटेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्रेडिट, अगर आप चौसर से कुछ भी आता है तो आप लिख सकते हो कि एडमंड राइटर्स एंड पोएट्स लाइक एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ चौसर। ओके, बिकॉज हर एक पॉइंट याद रखना पॉसिबल नहीं है, आपको एक आइडिया जनरेशन करना, अब हर चीज रटना नहीं है। And many more, from Dryden to Wordsworth. Poets have poets and writers have honored Chaucer as the father of English poetry. So in the coming ages, जैसे इसके बाद हम लोग एज ऑफ चॉसर पढ़ रहे हैं, फिर एज ऑफ रिवाइवल, फिर एलिजाबेथन एज, देन विल बी रीडिंग अबाउट कैरोलाइन एज, अगस्टन एज, romantic age. So many writers, credited Chaucer as the father of English poetry because they followed his footsteps. So Chaucer's legacy: he founded the English literary tradition. Okay, yes, English was being spoken, but in form of a literature, it was not considered as a highly esteemed language. He gave English a voice, a rhythm, and a soul. He opened the door for all that followed. He is a true father of English poetry. Okay, now there is a quotation: all that we have of Chaucer is worth more than all that we have of many other. Thomas Carlyle. Okay, you don't have to remember this. Okay, now next. Now his masterpiece is Canterbury Tales. His masterpiece is Canterbury Tales. Let us discuss Canterbury Tales. The Canterbury Tales, Chaucer's masterpiece of storytelling, characters, and social life. Why Canterbury Tales is considered as a masterpiece? There might be some reason. Whether the story might be very interesting, the characters might be very interesting, or the way the Chaucer might have written would have been very interesting. There might be some reason why it is considered as a masterpiece. So to be very precise, to be very accurate, why Canterbury Tales is considered as a masterpiece, because it is a reflection, or you can say it is a window into the 14th century society of England. It shows different sections of the society. You know why? Because before Chaucer, whatever writings in form of literature, whether it was poetry or drama or any form of literature, were only written on legendary heroes or gods. Okay, the topics were of gods or heroes, but Chaucer was someone who actually introduced the common people into the literary form literature. Earlier, there always used to be a story of king. Writers used to glorify kings, writer used to glorify a legend or a great warrior, but he is the one, Chaucer was actually the one who included a very common person from the society in his story. That is why he is considered a very great writer. The Canterbury Tales is a Chaucer's greatest and most celebrated work, written in late 14th century in Middle English verse. It is one of the greatest works in entire
history of English literature. Okay, now let us discuss something about uh, Canterbury Tales. The story begins at Tabard Inn. Tabard Inn, you can say a kind of hotel, you can say. Tabard Inn in a Southwark Park, London, where a group of 30 pilgrims gathered before getting out of a religious journey to a shrine of Saint Thomas Becket in Canterbury. So basically क्या था ना, टबार्ड इन पे लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पे उन लोगों को क्या करना था, तीर्थ यात्रा पे जाना था। कहाँ जाना था? सेंट थॉमस बेकेट कैंटरबरी जो है कैथीड्रल में, वहां उनको तीर्थ यात्रा पे जाना था। अब सेंट थॉमस बेकेट कौन थे एक्चुअली, एक छोटा सा ब्रीफ सिप्नोसिस दे देता हूँ। सेंट थॉमस बेकेट को 1170 में एग्जैक्टली में इसी अराउंड में 1170 के आसपास में हेनरी टू ने किल करवा दिया था। सो एक वो प्रीस्ट थे। कैथीड्रल का मतलब क्या होता है? चर्च, एक बड़ा चर्च। तो कैंटरबरी में एक चर्च हुआ करता था, वहां के वो प्रीस्ट थे, ठीक है, थॉमस बेकेट। तो उन्हें उनको मर्डर करवा दिया गया था। जिसके बाद से वहां पे उनका एक समझो कि एक तरह का इमारत मकबरा बना दिया गया, जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए यूज करते थे। तो यहाँ पे था कि टबार्ड इन से निकल के लोगों को 30 लोगों को जाना था, कहाँ तक? सेंट थॉमस के कैथीड्रल तक। अब उस रास्ते में जो जितने भी कैरेक्टर्स थे, सबको अपनी अपनी कहानियां सुनानी थी। तो बट अब वो आगे धीरे से समझेंगे हम लोग, धीरे धीरे ग्रेजुअली विल बी लर्निंग अबाउट इट। तो टबार्ड इन से स्टार्ट होता था, कहां तक? कैंटरबरी कैथीड्रल। किसका कैथीड्रल था वो? सेंट थॉमस बेकेट का, ठीक है। अ फेमस होली साइट वेयर पीपल वेंट टू प्रे फॉर ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग। नाउ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेक्स्ट, इसी कहानी के अंदर में हैली बेली हैरी बेली हैरी बेली कौन होता है? अ चीयरफुल इन कीपर, उस टबार्ड इन का समझो एक तरह का मालिक, ठीक है। ही प्रपोजेज अ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट टू मेक अ लॉन्ग जर्नी एंजॉयबल। वो बोला कि इतना लंबा सफर है यार, हम लोग चलेंगे पैदल, तो हर कोई अगर कोई कहानी सुनाएगा तो इस कहानी पे हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, और जो जिसकी कहानी सबसे मजेदार होगी उस कहानी पे उसको उसको हम क्या करेंगे, अपने होटल में फ्री मील देंगे, द बेस्ट स्टोरी टेलर। अब ये एक्चुअली कहानी का एडेप्टेशन आपको पता है कहाँ मिला होगा? एक बॉलीवुड में मूवी आई थी जिसका नाम था डरना मना है, ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग बैठ के अपनी अपनी स्टोरीज को सुनाते हैं, ठीक है। एक कहानी, एक मूवी है जिसके अंदर छोटे छोटे लोग अपनी अपनी कहानी को सुना रहे हैं। अब डरना मना है सुना होगा आपने, ठीक है, जिसमें आफ्ताब सुदेशानी का एक सीन रहता है जहाँ पे वो मिरर के सामने फ्रीज बोलता है, वो फ्रीज हो जाता है। सो समझो कि कहीं ना कहीं वो जो कॉन्सेप्ट लिया गया, या बॉलीवुड में हॉलीवुड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए गए, ये कहाँ से इंस्पिरेशन लिए जाते हैं? ये अलग अलग लेजेंडरी राइटर से लिए जाते हैं, ठीक है। So Harry Bailey, the cheerful innkeeper, proposes a storytelling contest to make the long journey enjoyable. Each pilgrim, हर एक तीर्थ यात्री, will tell two stories. उसको दो कहानी सुनानी है। ऑन द वे टू कैंटरबरी, कैंटरबरी जाते समय, एंड स्टोरीज ऑन रिटर्न, और आते समय भी सुनानी पड़ेगी वापस टू तबार्डिन। द बेस्ट स्टोरी टेलर विंस अ फ्री मील, जो अच्छा सबसे जिसकी कहानी मजेदार होगी उसको एक फ्री मील मिलेगा। यहाँ पे ये डील हुआ था इन लोगों के साथ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, द पिलग्रिमेज ऑफ ऑल क्लास। अब इसको क्यों चौसर को एक मास्टरपीस बोला जाता है, मास्टर बोला जाता है, और इस वर्क को मास्टरपीस कहा जाता है? सबसे पहले वो देखोगे ना, देयर विल बी so many different types of characters included from the medieval English society. So basically it is a reflection of the people and the social class of the medieval English. For example, ये सारे characters के नाम है, okay, these are the characters in Canterbury Tales. The knight, knight कौन होता है? एक brave and noble person होता है। एक होता है मिलर, मिलर कौन होता है? फन लविंग, बोल्ड एंड अर्थली होता है। फिर एक पार्डनर, पार्डनर एक करप्ट चर्च ऑफिशियल होता है, चर्च का ऑफिशियल होता है बट करप्ट होता है। फिर एक वाइफ ऑफ बाथ, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है और आउटस्पोकन वुमेन रहती है। द प्रायरस रहती है एक जेंटल, काइंड एंड डिवोट महिला रहती है। द ऑक्सफोर्ड क्लर्क रहता है, स्कॉलरली होता है एंड क्वाइट इंटेलिजेंट होता है। द फ्रायर होता है, फ्रायर एक तरह का प्रीस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। डिसऑनेस्ट, ग्रीडी एंड वर्ल्डली होता है, एंड मेनी मोर। तो काफी इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या खासियत है और समझते हैं। Tales shaped by tellers. Each tale is shaped by the personality, class and the values of its teller. हर किरदार, चाहे वो जो भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का, वो अपने हिसाब से कहानियों को बताता था। और उस कहानियों को सुन के मतलब इस समझो कि ये एक स्टोरी नहीं है, देयर विल बी मल्टीपल स्टोरीज इन वन स्टोरी। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बोला जाता है, क्योंकि मोनोटोनस नहीं होता, हर बंदे की अपनी कहानी थी। तो द नाइट टेल्स अ नोबल रोमांटिक स्टोरी। अब नाइट है, नाइट मतलब किसको बोलते थे? नाइट कहते थे एक सोल्जर को।
तो नाइट एक रोमांटिक स्टोरी सुनाता है, द मिलर सुनाता है एक क्रूड एंड फनी स्टोरी सुनाता है, जो पार्डनर रहता है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था कैरेक्टर, वो सुना प्रीचेस अगेंस्ट ग्रीड इवन दो ही हिमसेल्फ इज डीपली ग्रीडी, वो बोलता है कि ग्रीड नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट ग्रीड बात करता है लेकिन वो खुद में ग्रीडी पर्सन होता है। ठीक है, तो इट इज अ रिच वेराइटी ऑफ टेल्स, अ टेल्स द टेल कवर अ वाइड रेंज ऑफ जॉनर्स, काफी डिफरेंट जॉनर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही कैंटरबरी टेल्स में हमें कोटली रोमांस देखने को मिलता है। कोटली रोमांस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक योद्धा है नाइट, उसको किसी राजकुमारी से प्यार हो गया, तो ये कोटली रोमांस होता है। कॉमेडी देखने को मिलता है, मॉरल एलिगरी देखने को मिलता है, मॉरल एलिगरी मतलब एक मॉरल स्टोरी की तरह, सटायर देखने को मिलता है जहाँ पे पॉलिटिकल कमेंट्री किया जा सकता है, ट्रेजेडी देखने को मिल सकता है, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ, या कोई रिलीजियस धार्मिक टीचिंग देखने को मिलता है। सो अ सिंगल स्टोरी हैज सो मेनी डिफरेंट जॉनर्स, सो मेनी डिफरेंट स्टाइल्स। ओके ना, अब इस कहानी में सबसे बड़ी बात क्या है, ये कहानी लिखा गया था 1387 में। ओके, मैं यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 1387 में से लिखना स्टार्ट किया गया था चौसर ने, और एक्चुअली चौसर ने प्लान किया था टोटल 120 स्टोरीज बताने का, बट वो सिर्फ 24 स्टोरीज ही लिख पाए थे वो। आफ्टर दैट इन 1400 ही डाइड। तो सोचो फिर भी इतनी लगभग ये 25% ये स्टोरी सिर्फ फिनिश हुआ था अकॉर्डिंग टू चौसर और एज ही हैज प्लान्ड, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मास्टरपीस। So Chaucer planned 120 tales but completed only 24, yet even these 24 makes it a masterpiece of storytelling. सिर्फ 24 होने के बाद, 25% खत्म होने के बाद, एक क्वार्टर हो सकते हो कि जस्ट अ क्वार्टर वो खत्म होने के बाद फिर भी ये मास्टरपीस कहा जाता है। एंड अ सोशल ऑब्जर्वेशन, नाउ अ मिरर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड, थ्रू ह्यूमर विजडम एंड ट्रूथ, Chaucer gives us the living picture of medieval England. Its people, its belief, its flaws, and its humanity. Not just story, but its life. तो इस मैंने just like I said, कि it is not a story of some highly noble person. It is not simple, not just a story about a king. It is a story about the every section of the society, of people coming from different and various section of the society. So it shows how actually England was in 14th century. Okay, so the Canterbury Tales is not just a book of tales. It is it is a journey through the heart of medieval England. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं गाइस। नाउ जॉफरी चौसर एज अ सोशल क्रॉनिकलर, ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा चुका है जेपीएससी में। नाउ यू डोंट हैव टू मग अप, remember one thing, understand the concepts, everything will be written on your own in your own words. Okay, but एक आइडिया ले लो आप इससे। मैंने इसीलिए प्लेन टेक्स्ट का यूज नहीं किया, आई हैव यूज सिंबल्स, पिक्चर्स, पॉइंट्स, सो दैट इट विल बी अ बिट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, so Geoffrey Chaucer as a social chronicler. So Chaucer didn't just tell stories, he recorded the world. He is a social chronicler of the 14th century England. सोशल क्रॉनिकलर कहने का मतलब क्या हो गया? समाज कैसा था, समाज के लोग कैसे थे, इसको क्रॉनिकल करके वो अपने वर्क में दिखा रहे, लोगों को रिफ्लेक्ट करा रहे। और आज भी हम लोग समझो 600-700 साल के बाद, 800 साल के बाद भी इस चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और आज का नाम लिया जा रहा है। सो अ क्रॉनिकलर कौन होता है? अ क्रॉनिकलर रिकॉर्ड्स द लाइफ ऑफ पीपल एंड इवेंट्स ऑफ अ टाइम लाइक अ हिस्टोरियन और जर्नलिस्ट। ठीक है, मतलब वो लोग कैसे टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा था, क्या कोई वॉर हुआ था कि नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट, द मिडिवल इंग्लिश सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस। ठीक है, पहला, तो अब क्लासेस को समझ लेते हैं। चौसर ब्रॉट ऑल थ्री टुगेदर इन हिज कैंटरबरी टेल्स। समाज के डिफरेंट सेक्शंस को एक कहानी में उठा के ला देना, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो नोबल हो, चाहे वो गरीब हो। ठीक है, सो सेक्शन, जो समाज कैसे डिवाइडेड था, चर्च में, चर्च में पहले कौन था? क्लर्जी थे, मॉन्क्स थे, प्रीस्ट थे, नन्स थे। सेकंड था हमारा लड़ने वाले योद्धा लोगों का क्लास, द नोबिलिटी। अब इसमें कौन था? नाइट्स था, लॉर्ड्स था, किंग्स भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता हमारा कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में कौन कौन थे? मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे, क्राफ्टमेंट्स थे और कुक्स थे। अब the pilgrims are not a fictional types, they represent the real social groups that actually existed in medieval England, making Chaucer's work living document of his age. So उन्होंने कोई फिक्शनल तरीके का, कोई हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कैरेक्टर को यूज करने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने एक्चुअल पर्सन, पीपल जो उन्होंने अपने लाइफ में देखा, एक्सपीरियंस किया, वैसे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने का कोशिश किया। ठीक है, सो ही रिकॉर्डेड नॉट जस्ट व्हाट पीपल डिड,
बट हाउ दे ड्रेस्ड, उस वो सिर्फ कैसा दिखते हैं वो नहीं, वो कैसा बोलते हैं, वो कैसा कपड़ा पहनते हैं, वो कैसे समाज से आते हैं, उनके कैरेक्टर कैसा, हर चीज को पोर्ट्रे करने का कोशिश किया। व्हाट दे एट, वो खाते क्या थे, हाउ दे स्पोक, वो बोलते कैसे थे, व्हाट दे ट्रूली बिलीव, उनकी लाइक व्हाट वर देयर बिलीफ सिस्टम कैसा था, उनकी मान्यताएं कैसी थी, एंड हाउ दे बिहेव्ड इन पब्लिक वर्सेस इन प्राइवेट, पब्लिक और पर्सनल लाइफ उनका कैसा था, हर एक चीज को मेंशन किया चौसर ने, इसीलिए इनको सोशल क्रॉनिकलर कहा गया है। ठीक है, कि मतलब सोसाइटी को एग्जैक्टली एज इट इज दिखाने का कोशिश किया, एग्जैक्ट एक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने का कोशिश किया गया। नेक्स्ट, ही फियरलेसली एक्सपोज्ड करप्शन इन द चर्च। अब करप्शन क्या था, चर्च सबसे पावरफुल एंटिटी था उस समय के समाज में। अब चर्च में क्या था, चर्च में बहुत ज्यादा करप्शन हो गई थी। चर्च रिलीजियोसिटी के टर्म्स पे, वो वैल्यू के हिसाब से वो उतना फंक्शन नहीं कर रहा था। चर्च बिकेम अ मोस्ट करप्ट यू नो इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये पार्डनर कौन है, पार्डनर एक कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल्स में, अ चर्च ऑफिशियल हु सोल्ड फेक रिलीजियस पार्डन्स टू चीट पीपल। तो ये दिखा रहा है कि अब यहाँ ये कैरेक्टर यूज किए, कि एक समझो कि पार्टनर एक चर्च का ऑफिशियल है जो फेक रिलीजियस पार्डन्स को धोखा से बेचता था लोगों को। तो ये चर्च के लोग ऐसा काम कर रहे थे, तो इसीलिए चर्च के कैरेक्टर को अपने कहानी में शामिल कर लिया। नेक्स्ट है फ्रायर। फ्रायर सपोज टू बी अ हेल्पर ऑफ द पुअर बट इंस्टेड टुक मनी फ्रॉम देम। फ्रायर एक प्रीस्ट के जैसा, वो गरीबों की मदद करने के लिए बना है उसका काम, बट वो गरीबों से उल्टा पैसा लेता है। तो अगेन ये करप्शन ऑफ द चर्च दिखाता है। नेक्स्ट है द मंक, सपोज टू प्रे बट लव्ड हंटिंग एंड द फूड। ठीक है, बट हिज ड्यूटी वाज टू प्रे, बट उसे लव्ड हंटिंग एंड फाइन फूड उसे पसंद था, ग्लैमरस लाइफ पसंद था। तो चौसर डिड नॉट हाइड द ट्रूथ, चौसर ने समाज की सच्चाई को छुपाया नहीं है। ही शोड द फ्लॉज ऑफ दोज हु अब्यूज पावर, रिलीजन एंड पर्सनल गेन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब कुछ बुरे कैरेक्टर्स थे तो कुछ अच्छे भी थे। ही ऑल्सो सेलिब्रेटेड जेन्युइन गुडनेस, जैसे सबसे अच्छा कैरेक्टर माना जाता है कैंटरबरी टेल्स का द नाइट। ब्रेव, नोबल एंड कर्टियस था, अ ट्रू मैन ऑफ ऑनर था, फेथफुल इन वॉर था एंड अपराइट इन कंडक्ट, एक अच्छा ढंग से जीने वाला, जिंदगी जीने वाला। फिर दूसरा था पार्सन। ठीक है, पार्सन एक याद रख लेना, एक पार्डनर याद रख लेना, ऊपर हमने पढ़ा ना पार्डनर, पार्टनर था खराब, पार्सन था अच्छा पर्सन। ठीक है, सो पार्सन कौन था, अ विलेज प्रीस्ट था हु वाज पुअर बट ऑनेस्ट, काइंड एंड डिवोटेड टू हिज पीपल, बाय शोइंग बोथ द ऑनरेबल एंड करप्ट। मतलब चौसर ने दोनों तरह के लोगों को दिखाने का कोशिश किया कि अच्छे भी कैसे, बुरे भी कैसे। चौसर गिव अ बैलेंस ट्रूथफुल पिक्चर ऑफ मिडिवल सोसाइटी, नॉट जस्ट आइडियलाइज वन साइडेड, मतलब एक तरफा या बायसनेस समाज का नहीं दिखाया उन्होंने कि मुझे जो अच्छा लगा मैं दिखाऊंगा। ही नेवर हेजिटेटेड टू कॉल अ स्पेड, चोर को चोर बोलने में कभी वो डरते नहीं थे। समाज का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन और रिफ्लेक्शन दिखाने का कोशिश किया इन्होंने। ठीक है, तो वाई चौसर मैटर्स टू अस टुडे, चौसर हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहली बात, हिस्टोरियंस टुडे रीड चौसर टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इन मिडिवल इंग्लैंड वाज एक्चुअली लाइक। Okay, we got, like I said, कि it was a window into the picture of the social life of medieval England, हमें देखने को मिलता है कि वो था कैसा। he recorded the real people, real places, real customs, real problems of his times, वास्तविक लोग, वास्तविक प्रॉब्लम्स, वास्तविक प्रथाएं अपने समय का दिखाने का कोशिश की है, कोई इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल चीज नहीं, कोई एग्जैजरेशन नहीं बढ़ा चढ़ा के। he is as valuable as a historian because of his work is a major of medieval life. So basically, despite being a writer, a poet, his work led him to become, or we can say he became a historian of his age, because क्योंकि अपने समय के इतिहास को कहानी के माध्यम से सिखाया इन्होंने। ठीक है, सो थ्रू हिज ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड पावरफुल स्टोरी टेलिंग, ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। ओके, हाँ, सो थ्रू हिज ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड पावरफुल स्टोरी टेलिंग, चौसर बिकेम द सोशल क्रॉनिकलर ऑफ इंग्लैंड। अब ये जितना भी डेटा है ना, चौसर से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये सब डेटा आप यूज कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि अगर वो सोशल क्रॉनिकलर वाला ही क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा, नहीं, चौसर से रिलेटेड कुछ भी आएगा आप यहाँ से लिख सकते हो। तो चौसर सॉ पीपल एज दे वर, चौसर बिल्कुल वैसे दिखते थे जैसे लोग एक्चुअली थे, नॉट एज दे शुड बी। दिस इज वाई हिज वर्ड्स हैव लिव्ड अस ओवर 600 ईयर्स, इसलिए 600 साल के बाद भी आज हम लोग उन्हें याद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमर एंड आयरनी, ह्यूमर एंड आयरनी इन चौसर।
wit that reveals the truth. So Chaucer is one of the great masters of humor in English literature. His comedy is never crude or hateful. उनकी कॉमेडी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होती थी, ह्यूमरस तरीके से मजाक उड़ाते थे। समाज का किसी का मजाक उड़ाना है ना, तो इसमें ह्यूमर निकालेंगे, एग्जैजरेशन, बहुत हार्श क्रिटिसिज्म, यूजिंग वेरी वेरी शार्प वर्ड्स वो यूज नहीं करते थे, ह्यूमरस तरीके से खिल्ली उड़ाते थे। इट इज विटी वार्म एंड डीपली इंटेलिजेंट। सो इनका जो, इसीलिए ह्यूमरस कहा जाता था कि कॉमेडी कभी क्रूड और हिटफुल नहीं होता था, वो विटी होता था, वार्म होता था, डीपली इंटेलिजेंट होता था, बहुत सोच समझ के लिखते थे। ठीक है, अब जैसे आयरोनी क्या होता है? द सटल वेपन। आयरोनी इज अ लिटरेरी डिवाइस। आयरोनी होता क्या? आयरोनी का मतलब होता है विडंबना की बात, कि ये तो दिखता अच्छा है, ये तो दिखता साधु है चोर, बोलते हैं ना हम लोग, जैसे दिखता साधु है चोर, तो ये विडंबना की बात है, इसी को आयरनी कहते हैं। तो आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द राइटर सेज वन थिंग एंड द सरफेस बट मीन्स द अपोजिट। इट इज यूज टू एक्सपोज हिपोक्रेसी एंड फुलिशनेस विदाउट डायरेक्ट अटैक। मतलब सीधा सीधा अटैक नहीं करना, उल्टा घुमा के बोलना। अच्छा, नेताजी हैं, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, गरीबों की बहुत मदद करते हैं, दिन भर गरीब के साथ बैठे रहते हैं, ठीक है, गरीबी लोग अपना भला नहीं चाहते तो क्या करेंगे, मतलब इस तरह से ह्यूमरस दिखाएंगे। ठीक है, द मंक। मंक अब क्या है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, इन जनरल प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब है जब ये इंट्रोड्यूस करते हैं कैरेक्टर्स को, जब कैंटरबरी टेल स्टार्ट होता है तो पहला जो टॉपिक है ना वो प्रोलॉग है। प्रोलॉग में क्या होते हैं, वो एक एक अपने किरदारों के बारे में एक्सप्लेनेशन करते जाते हैं। तो चौसर डिस्क्राइब्स मंक एज अ फाइन बोल्ड मैन हु लव्स हंटिंग एंड फाइन हॉर्सेस, but the readers understand this sharp criticism because the monk is supposed to pray, fast and live simply, not enjoy worldly pleasure। तो वो क्या होता है ना, वो मंक की तारीफों के पुल बांधते हैं, और वो रीडर समझ पा रहा है अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से कि अच्छा ये तो इसके बारे में बता रहे हैं, मंक है, मतलब ये तो धार्मिक व्यक्ति है, इसका काम तो फास्ट करना, इसका काम तो प्रे करना, इसका काम तो लाइक वर्ल्डली प्लेजर्स में इन्वॉल्व नहीं होना, और ये वही कर रहा है। तो हमें समझना है अपने अपने डिस्क्रिप्शन पे समझना है कि अच्छा यानी ये अपने पर्सनालिटी, अपने वर्क प्रोफाइल का बिल्कुल फ्लिप साइड में काम कर रहा है। तो ये तरह का वो आयरनी यूज करते थे। फिर पार्डनर। अब जैसे यहाँ पे देखो, पार्डनर के बारे में समझते हैं। ठीक है, पार्डनर, आयरनी दैट एक्सपोजेस द हिपोक्रेसी। पार्डनर क्या होता है? द पार्डनर एक चर्च ऑफिशियल होता है हु इज सपोज टू हेल्प पीपल गेन गॉड्स फॉरगिवनेस, इज sarcastically कॉल्ड अ नोबल चर्चमैन। sarcastically उसको नोबल चर्चमैन कहा जा रहा है। इन रियलिटी ही सेल्स फेक पार्डन्स, फेक पार्डन्स बेचता था, फेक रेलिक्स बेचता था, and openly admits that his in his prologue that he does not this purely for money। चॉसर्स प्रेज इज प्योर मनी। वो क्लियर बोलता था कि अरे मैं ये सब तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, जबकि एक चर्च का ऑफिशियल पैसे से, मटेरियलिस्टिक थिंग से अपने आप को डिटैच करना हो चाहिए। ठीक है, द प्रायरेस a senior nun is described with elaborate attention to her delicate table manners, fine clothes, and soft heart for animals. But Chaucer subtly mocks her for caring more about appearances and social refinement than about true religious devotion। अब जैसे कि आप आज, प्रायरस एक नन की टाइप की है, सीनियर नन, जिसको बेसिकली देखना चाहिए लोगों के बारे में, लोगों का कल्याण ना सोचने के बारे में, मैं कैसा दिखती हूँ, अपने लुक्स के बारे में वो ज़्यादा ऑब्जेसिव रहती है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का आयरनी है जो पाखंड को दिखाता है कि आप अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ह्यूमर इन एक्शन, डायरेक्ट कॉमिक फॉर्म्स, द मिलर्स टेल एंड द रीव टेल। अभी क्या, मिलर एक व्यक्ति होता है जो अपनी कहानी सुनाता है, रीव कौन होता है जो अपनी कहानी सुनाता है। टेल क्यों यूज किया गया? हर व्यक्ति का अपना कहानी है जो लोग अपने सुना रहा था। तो मिलर ने कोई कहानी सुनाई थी, रीव ने कुछ कहानी सुनाई थी। रीव कौन है? इसका किरदार है। मिलर कौन है? इसका किरदार है। द मिलर एंड रीव are full of physical comedy, clever tricks and crude situations, deliberately funny and designed to make audience laugh out loud। ठीक है, the power of laughter, Chaucer laughs at human weakness, pride, greed, lust, hypocrisy, but this laughter is always wise and understanding, never cruel or angry। मतलब वो हंस भी रहे हैं, समाज का व्यंग कर रहे हैं, बट एकदम हार्श शब्दों में, कटु शब्दों में नहीं कर रहे हैं, ह्यूमरस व्यंग कस रहे हैं। वाई इट मैटर्स, अब आखिर ये मैटर क्यों करता है? ह्यूमर मेक्स हिज क्रिटिसिज्म शार्प विदाउट बिटरनेस। बिना कड़वाहट के वो किसी की निंदा कर सकते हैं। ही कैन क्रिटिसाइज एनीवन विदाउट यूजिंग हार्श वर्ड्स। आयरनी एक्सपोजेस हिपोक्रेसी विदाउट प्रीचिंग। आयरनी का मतलब क्या होता है? विडंबना कभी पाखंड को
एक्सपोज कर सकती है बिना किसी चीज को प्रीचिंग किए हुए। कैरेक्टर्स फील रियल, फ्लॉड एंड ह्यूमन। कैरेक्टर्स रियल है क्योंकि हर कैरेक्टर्स में, या इंसानों की जैसे इंसान का नेचर फ्लॉ होता है, कैरेक्टर्स में भी कमियां, फ्लॉड दिखाई गई है। ये ह्यूमन नेचर है, नो वन इज परफेक्ट। तो ये भी दिखाना चाहते थे कि माई कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर नॉट परफेक्ट। सीरियस ट्रूथ्स बिकम्स इंजॉयबल, एक्सेसिबल एंड मेमोरेबल। सीरियस ट्रूथ था जो कि इंजॉयबल था, एक्सेसिबल था और मेमोरेबल था। चॉसर्स विट इज टाइमलेस, इट स्पीक्स टू एवरी एज। चौसर ने जो विट ह्यूमर का यूज किया, ये हर एक एज को अपील करता है। तो ये यहाँ पे कुछ था। तो चौसर्स ह्यूमर इज नॉट जस्ट टू एंटरटेन बट टू ओपन आवर आईज टू फॉलीनेस। फॉलीनेस का मतलब क्या होता है? फॉलीनेस का मतलब होता है कमियां, ठीक है, एंड द गुडनेस ऑफ अ रियल ह्यूमन। इंसान की अच्छाइयों को, इंसान की बुराइयों को, सारी चीजों को दिखाने का कोशिश किया। इसमें कुछ एम्बेलिशमेंट नहीं होना चाहिए। एम्बेलिशमेंट मतलब कि बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला। नेक्स्ट है रियलिज्म इन चौसर, ठीक है, सारे कनेक्टेड है, ठीक है। पोर्ट्रेइंग लाइफ एज ट्रूली इट इज, जैसे कि मैंने बोला था कि चौसर डिड नॉट राइट आइडियल अबाउट आइडियल पीपल, ही रोट अबाउट रियल पीपल। किसी को आइडियलाइज नहीं करते थे, वास्तविकता से लोगों को अवगत कराते थे। यू नो, द रियलिज्म इन लिटरेचर कम्स मीन्स portraying life as truly it is, exactly showing the life as it is, the just the reflection, a mirror in the medieval society, with its flaws, contradiction, ugliness, and beauty, rather than presenting an idealized perfect version of the world. Before Chaucer, अब बिफोर चौसर मैंने बताया था कि मोस्ट इंग्लिश राइटिंग्स वर अबाउट परफेक्ट हीरोज, आइडियलाइज्ड लव, नोबल एडवेंचर्स। रियल फ्लॉड ऑर्डिनरी पीपल वर लार्जली एब्सेंट फ्रॉम सीरियस लिटरेचर। पहले चौसर से पहले जितना भी लिटरेचर का फॉर्म होता था, वहां पे एक हीरोइज्म की गाथा गाई जाती थी, किंग्स की बात किया जाता था, परफेक्ट लव स्टोरी की बात की जाती थी। बट यहाँ चौसर ने क्या किया? चौसर ने हर चीज को चेंज कर दिया। He wrote about real human beings, people who were greedy, lustful, hypocritical, witty, kind, corrupt, or genuinely good, just as they existed in real medieval society. मतलब इन आज भी ऐसा नहीं कि आज पाखंड नहीं है, आज विटी लोग नहीं है, आज लस्टफुल नहीं है। तो अब क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल कभी भी हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी की बात की जाती है। अगर आज गांधी जी जिंदा होते ना, तो हो सकता है आज की मीडिया या यूट्यूब मीडिया कहीं ना कहीं से कोई फ्लॉ निकाल के एक्सपोज कर दे, हो सकता करती, या कुछ निकाल देती कि उनके बारे में कुछ बुराई। ग्लोरिफिकेशन इतना आसान नहीं होता। आज के समय अगर कोई अभी कोई भी सेलिब्रिटी मान लो, या कोई भी एक कितना भी अच्छा इंसान मान लो, जब से राघव चड्ढा का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बंदे ने कोशिश तो अच्छा किया, बट फिर भी आज उसकी लाइक आयरनी हो गया, विडंबना, कुछ लोगों ने किल्ली उड़ाई। या फॉर एग्जांपल कभी भी कोई अगर गवर्नमेंट को बहुत आइडियलाइज किया जाता है, तो अगेन उसके कुछ समय के बाद हार्श क्रिटिसिज्म आने लगता है। तो ग्लोरिफिकेशन आजकल आसान नहीं है, ठीक है। जैसे कांग्रेस वाले लोग चमचा बोलते हैं, बीजेपी वाले अंधभक्त बोलते हैं। तो हर एक दूसरे से कहीं ना कहीं ग्लोरिफिकेशन आसान नहीं है, कोई ना कोई आपका हार्श क्रिटिक आएगा। तो उसी तरह से समाज इस तरह से बनता है। तो पहले भी ऐसे था। तो बट चौसर के पहले क्या था? सिर्फ अच्छाइयों को दिखाया जाता था, वाहवाही लूटी जाती थी। ओके, सो स्ट्राइकिंगली रियलिस्टिक पोर्ट्रेल। अब जैसे द वाइफ ऑफ बाथ एक कैरेक्टर है, मजेदार कैरेक्टर इसमें। अब कभी एग्जाम खत्म हो जाए तो कैंटरबरी टेल्स पढ़ लेना स्टोरी। वाइफ ऑफ बाथ के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली जाती है कि बंदी ने 5 शादियां करके रखी थी, छठी करने वाली थी, और फिफ्थ हस्बैंड ने उसको ऐसा थप्पड़ मारा था कि इसकी दांत टूट गई थी और एक कान से वो डेफ हो गई थी, वो ठीक है, सुन नहीं पाती थी। तो शी हैज अ गैप बिटवीन हर टीथ, a medieval sign of bold sensual personality. मिलर कौन होता है? ही हैज अ वॉट ऑन हिज नोज, नोज पे एक वॉट होता है, ठीक है, विथ रेड हेयर्स ऑन इट, नो आइडियलाइजेशन, ओनली रियल विविड और ह्यूमन डिटेल। अब समझो कि किसी के नाक पे वॉट है, उस पे लाल रंग की बाल निकली हुई है, इतना ज्यादा रियल एक पिक्चराइजेशन दिखाने का चौसर ने कोशिश किया, ठीक है। द पार्डनर क्या होता है? ही ओपनली एडमिट्स टू सेल फेक होली रिलिक्स एंड फेक पार्डन्स टू इनोसेंट पीपल फॉर मनी एंड डज इट शेमलेसली। पूरा शेमलेसली वो बेच रहा है। हाँ, चर्च का आदमी है, क्या है, हम साधु संत नहीं, हम पैसा कमाने के लिए आए, ठीक है। द मंक क्या? ही इग्नोर्स हिज रिलीजियस ड्यूटीज, प्रेयर, स्टडीज, फास्टिंग, इंस्टेड ही हंट्स, शिकार करता है, मस्त खाना खाता है। इन लोगों को तो एब्सटेनेंस करना चाहिए ना। साधु संत क्या कहते हैं? सादा खाना। हमारे प्रेमानंद जी महाराज क्या बोलते हैं? सादा खाना, शाकाहार खाना, प्याज लहसुन तक भी नहीं होना। ये तो पूरा एकदम शानदार खाना खाता था। एंड लिव्स कंफर्टेबली। फ्रायर,
ही टेक्स मनी फ्रॉम द पुअर इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम, शोइंग हिपोक्रेसी एंड ग्रीड। तो यहाँ पे फ्लॉड सोसाइटी दिखाई जा रही थी, चर्च की कमियां दिखाई जा रही थी, लेकिन बैलेंस्ड और रियलिस्टिक व्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्श ही था। अब जैसे कि हम लोगों ने नाइट की बात की थी, तो एट द सेम टाइम चौसर शो जेन्युइन वर्च्यूज। वर्च्यू का मतलब होता है एक अच्छी खासियत, गुड क्वालिटीज, लाइक कैरेक्टर्स लाइक नाइट एंड पार्सन। नाइट मतलब जैसे ब्रेव था, नोबल था, कर्टियस था, ट्रू टू हिज वर्ड था, सबसे शानदार, सबसे साफ कैरेक्टर का कैरेक्टर इस स्टोरी में। पार्सन पुअर है, ऑनेस्ट है, काइंड है, डिवोटेड है टू हिज पीपल, अ ट्रू शेफर्ड ऑफ हिज सोल। चौसर डजंट जज, ओके, all by one standard. He shows both good and bad just as life it is. So ahead of his time, the pioneer of realism, मतलब realism को इतना ज्यादा पहले कोई फॉलो नहीं किया था, स्पेशली लिटरेचर में, इसलिए चौसर को कहा जाता है रियलिस्टिक थे वो। ही ब्रॉट ऑर्डिनरी पीपल इनटू लिटरेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। आम लोगों के किरदारों को कहानी में पहली बार जगह मिली। ही शोड लाइफ इन ऑल इट शेड्स, हर एक शेड्स में, हर एक तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश किया। फनी, सैड, नोबल, विकेड एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। ही एक्सपोज्ड करप्शन विद इन द चर्च विदाउट फियर ऑफ फेवरेटिज्म। ठीक है, चर्च की बोल सकते हैं ना, चाटुकारिता नहीं करते थे। जैसा चर्च सबसे पावरफुल उस समय इंस्टीट्यूशन था, जैसा वैसे बोलेंगे। ही गेव अस अ ट्रू मिरर ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। द रियलिस्टिक अप्रोच मेड चौसर पायनियर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी रियलिज्म इन इंग्लिश। चौसर लुक्ड द लाइफ विद ओपन आइज, खुले आंखों से देखते थे जिंदगी को, एंड ब्रेव हार्ट, एंड दैट इज व्हाई हिज वर्क स्टिल लिव्स आफ्टर मोर देन 6 centuries। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा नैरेटिव टेक्निक इन चौसर। नैरेटिव टेक्निक मतलब ये अपने स्टोरीज को बताने के लिए कैसे नैरेटिव टेक्निक्स यूज करते थे। तो द नैरेटिव टेक्निक क्या है? द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग विद इन द स्टोरी, मतलब कहानी में स्टोरी टेलिंग कैसा होना चाहिए, कितना पावरफुल होना चाहिए, किस तरह से लोगों को ज्यादा एक एनग्रॉजिंग, लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो, इसे कहते हैं नैरेटिव टेक्निक। तो नैरेटिव टेक्निक रेफर्स टू द मेथड ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड अ राइटर uses to tell a story, including a view, point of view, structure, framing, and relationship between the narrator and audience. अब यहाँ समझो, द फ्रेम नैरेटिव, ये वर्ड याद रख लेना। द फ्रेम नैरेटिव, एक स्टोरी दैट कंटेन्स मेनी स्टोरीज, की स्टोरी है उसमें बहुत सारी कहानियां छुपी हुई है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम नैरेटिव, जो कैंटरबरी टेल्स की खासियत है। Chaucer's most significant narrative technique in Canterbury Tales is a frame narrative या frame story भी कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, a larger outer story that contains much smaller individual stories within it. The pilgrimage journey, जैसे the pilgrimage journey to Canterbury is a frame to individual tales told by each pilgrim are the stories inside it. तीर्थयात्री जा रहे हैं टेबार्ड इन से कैंटरबरी, सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन पे। हर किरदार दो दो कहानी सुनाएगा, तो एक कहानी चल रही है, उसके अंदर मल्टीपल कहानियां चल रही है, फ्रेम नैरेटिव इसको कहते हैं। दिस फ्रेम अलाउज चौसर टू इंक्लूड एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ स्टोरीज, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, मॉरल टीचिंग, सटायर, all in one work. Different genres and tones can coexist belong to the different storytellers. अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर शेक्सपियर का पढ़ रहा हूँ मैकबेथ, तो शेक्सपियर का मैकबेथ कैसा स्टोरी है? ट्रेजेडी है, वो ट्रेजेडी ही होगा। अगर मैं पढ़ रहा हूँ शेक्सपियर का ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, वो कॉमेडी है, कॉमेडी होगा। अगर मतलब समझो कि यहाँ पे मोनोटोनस जॉनर नहीं था, एक कहानी के अंदर मल्टीपल जॉनर्स हो सकती थी। कोई आध्यात्म की कहानी हो सकती थी, कोई फनी कहानी हो सकती थी, मॉरल एलिगरी हो सकती थी, कोई रिलीजियस टीचिंग हो सकती थी, कोई ट्रेजेडी हो सकता था, मतलब हर एक तरह की कहानियां रेडी थी इसमें, इसलिए इंटरेस्टिंग बनता है ये। डाइजेस्ट बोलते हैं ना, इसमें एक कहानी के अंदर मल्टीपल डिफरेंट जॉनर्स शामिल है, तो डिफरेंट जॉनर्स था इसके अंदर में। द नरेटर चॉसर्स पर्सोना, Chaucer uses a persona, a fictional version of himself as the narrator of the Canterbury Tales. मस्त बात है, ये मैंने बताना यहाँ पे भूल गया था। जितने भी किरदार है ना, 29 पिलग्रिम्स है, 29-30 पिलग्रिम्स जो है इसमें कैंटरबरी टेल्स में, उसमें एक कैरेक्टर चौसर खुद है, उसका नाम भी चौसर रहता है। वो खुद अपने आप को, राइटर खुद अपने आप को अपने स्टोरी में इंक्लूड किया, लेकिन यहाँ पे वो अपनी कहानी नहीं सुनाता है, वो इस कहानी का नरेटर है, वो बाकी लोगों को कहानी सुना रहा है। तो अगर कोई पूछे कि लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौसर हिमसेल्फ प्लेड एज ए कैरेक्टर इन हिज स्टोरी कैंटरबरी टेल्स, और वहां पे कौन से कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने? एक नरेटर का रोल प्ले किया। तो द नरेटर चौसर इज डेलिबरेटली नाइव, नाइव मतलब भोला, इनोसेंट,
but he praises characters who are clearly corrupt, takes everything at face value and avoids direct judgment. तो डायरेक्ट जज नहीं कर रहे, वो नरेटर है, सबको बता रहे, सब कैरेक्टर के बारे में ऑडियंस को बता रहे. ड्रामेटिक आयरोनी, सेइंग वन थिंग मीनिंग अनदर थिंग. आयरोनी का मतलब क्या होता है? विडंबना. मैं किसी को साधु बोल रहा हूँ लेकिन कहना चोर चाहता हूँ. तो दिस क्रिएट्स ड्रामेटिक आयरनी. द रियल चॉसर, द ऑथर एंड द नरेटर चॉसर, डिफरेंट थिंग. जो रियल चॉसर है, जो इस कहानी को लिख रहा है, वो उसका माइंडसेट अलग है. जो कैरेक्टर चॉसर है इस कहानी के अंदर, उसका माइंडसेट अलग है. When the narrator praises dishonest pardoner as noble, the reader understands the real Chaucer is criticizing him, but the politely indirectly. कहानी के अंदर छुपा हुआ चौसर जो कैरेक्टर है, वो अगर किसी को नोबल कहता है तो हम एज अ रीडर, हम और आप ये समझ जाते हैं अच्छा ये हमारे राइटर चौसर साहब इसको ना खिल्ली उड़ा रहे हैं. तो मतलब यहाँ भी मैं वहां भी मैं, चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का भी मेरे बाबूजी का. ये वाला कहानी है यहाँ पे. ठीक है. सो अ नोबल मैन वर्दी ऑफ अ मैन दैट फ्रो द फर्स्ट, जनरल प्रोलॉग में बोला गया था. मैचिंग टेल टू टेलर, अ ब्रिलियंट नरेटिव स्ट्रैटेजी. ईच टेल परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी, क्लास एंड वैल्यू ऑफ इट्स टेलर. नाइट बहुत ही एक कोटली रोमांस लव बताता है, ऑनर एंड नोबिलिटी का सिंबल होता है. मिलर टेल्स अ क्रूड अर्थली एंड हिलेरियस कॉमेडी. पार्डनर टेल्स अ morality tale about greed while being greedy himself. चोर ही संत बन रहा है और चोरी का कहानी सुना रहा है. So direct address, a conversation with the reader. Chaucer uses direct address to narrator, speaks the reader directly, creating a sense of intimacy and living story. Chaucer अपने नरेटर का भी रूप धारण किया हुआ, क्योंकि कहानी में भी उसका कैरेक्टर है, चौसर ही नाम रहता है. कैंटरबरी टेल्स में चौसर, राइटर भी चौसर है और कैरेक्टर भी चौसर, बट वो नरेटर रहता है. ठीक है. इट फील्स दैट टेल्स आर बीइंग स्पोकिंग लाउड देन रादर देन रिटन ऑन अ पेज. ठीक है. A masterpiece of narrative craft. The combination of frame narrative, ironic persona, tale teller matching, and direct address make Chaucer's narrative technique highly sophisticated and centuries ahead of his time. तो फ्रेम नैरेटिव इन्होंने यूज किया, जो क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स एंड यूनिटी प्रोवाइड करता है. दूसरा इन्होंने क्या यूज किया, ये पहला है, फ्रेम नैरेटिव आपको लिखना है. आयरॉनिक पर्सोना, आयरॉनिक मतलब है कुछ और, दिख रहा है कुछ और, लेकिन वो कर कुछ और रहा है. ठीक है. जैसे पार्टनर की मैंने बात किया था. आयरॉनिक क्रिएट्स अ सटल ह्यूमर एंड डेप्थ. टेल टेलर मैचिंग एंश्योर्स वैरायटी ऑफ रियलिज्म. डायरेक्ट एड्रेस बिल्ड इंटीमेसी एंड एंगेजमेंट. तो चॉसर डजंट जस्ट टेल स्टोरीज, वो कहानियां नहीं बताते थे. He creates a world where stories live, people speak, and truth hides behind a smile. एक स्माइल के पीछे सच्चाई छुपी हुई. तो ये था हमारा एज ऑफ चौसर. ठीक है. अब आप एज ऑफ चौसर का नोट्स बना लेना खुद से. मैंने ये पॉइंट दिया, मैंने प्लेन पीडीएफ वर्ड फॉर्मेट में प्लान कर रहा था देने का, बट मैंने ये दिया कि एक्चुअली आप इससे शायद कुछ पिक्चर्स होगी, पॉइंट्स होंगे, सिंबल्स होंगे, तो आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट होगा. एंड गाइज हमारी एडमिशन ओपन है, ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे जा रही है. फॉर दोज ऑफ यू हु आर रियली इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉर अ मेंटरशिप फॉर जेपीएससी पेपर टू मेंस इंग्लिश, my number has been given down below. You can just call me up, text me. Okay. And also एक और चीज़ गाइस, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप पे एक बार मुझे मैसेज कर देना. आई विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट ग्रुप, बिकॉज टेलीग्राम अभी बंद है. ठीक है. आई डोंट नो 30 तारीख तक कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 22 तारीख तक, 30 तारीख तक मान लो बंद है अगर, तो व्हाट्सएप हम लोगों ने एक डेडिकेटेड चैनल ग्रुप बनाया, क्लोज ग्रुप, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. ये हमारे क्लोज हमारे एनरोल स्टूडेंट्स के बारे में. ठीक है. एंड बाकी अगर आप जो लोग लाइक देख रहे हो यूट्यूब पे, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इफ यू फाउंड दिस कंटेंट अमेजिंग, ठीक है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज शेयर, लाइक, and if you are looking for mentorship, you can feel free to connect me. So see you in the next session. Till then, happy learning and bye for now.